Hello, guys. How are you all? I'm pretty sure all of you must be so awesome. So, thanks a lot for your huge support, for your huge love, and it really means a lot to me. So, today we are just going to see quick revision of principal basis of inheritance. तो हम बहुत डिटेल में नहीं कर रहे हैं. We would see the outline which is important for the CBSE exam, right? Because बच्चों का ये exam था and many students have suggested me to make the quick revision on the principal basis of inheritance. In case you want to make any of the topics in detail, I would do that also, but I'm giving you quick revision. So this would be beneficial for those students who have already done this chapter, but they want to revise it in a precise way, right? And those students want to learn it in detail, please write down in the comment box and write down the topic also, so that I would make the detailed video on this, right? So let me take you ahead, and bacha, don't forget to like the video, subscribe the channel, and share it with your friends so that they would also get the benefit of this video, right? So let me just start our session. So if we are talking about the genetics, तो यहाँ पर सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है मेंडल, राइट? सो ऑब्वियसली सबसे पहला नाम आएगा मेंडल, है ना? ग्रिगोर जोहान मेंडल, हु हैज डन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट. कितने कैरेक्टर्स लिए थे? ऑब्वियसली ही हैज टेकन 7 कैरेक्टर्स, है ना? कितने कैरेक्टर लिए थे? 7 कैरेक्टर्स. एंड 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? ऑल ऑफ दीज आर 7 कैरेक्टर्स. फ्लावर कलर, plant height, seed color, seed shape, pod color, pod shape, flower position. Some of them are having dominant trait and kuch ke the recessive trait, as we can see in the diagram. Dominant trait are indicated by this capital letter, and obviously recessive small say, capital say, small say, capital say, small say, capital say, small say, right? So this is the way of representing these dominant and recessive one. So you can see this representation, right? And bacha, we are not doing anything in detail because I'm giving you whole summary of this chapter. But if you want me to do it in detail, please write down in the comment box of the particular topic, right? This is the Bono hybrid cross, means he will be taking one gene, one character, means यहाँ पर वो सिर्फ height ले रहा है. तो इसके लिए फिनोटाइप रेशियो मींस दिखने में कैसे होंगे F2 जनरेशन के लोग? तो ऑब्वियसली इफ ही हैज टेकन टॉल पेरेंट एंड डॉर्फ पेरेंट एंड ही हैज क्रॉस देम फ्रॉम F1 जनरेशन, फिर वो F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाएगा, सेल्फ पॉलिनेट करवाएगा, एंड देन ही वुड बी गेटिंग दिस रेशियो. So out of this we can see these 3 would be tall and 1 would be dwarf. So phenotype ratio would be 3:1. And genotype ratio क्या होगी बच्चा? तो obviously 1 is pure homozygous dominant, 2 is a hybrid heterozygous dominant, means ये वाली condition, and 1 would be this dwarf condition. So 1:2:1 would be the genotype ratio, right? So next is the dihybrid cross. Dihybrid cross में क्या किया था मेंडल ने? Obviously he has taken 2 conditions, right? So means 2 genes together. So यहाँ पर एक इन्होंने लिया round and yellow seed, and another one is wrinkled and green seed. दोनों को क्रॉस करवा के, and then F1 जनरेशन में सारे ऐसे आए round and green. Then he was like कि भैया फिर wrinkled and yellow कहाँ गया? सर wrinkled and green कहाँ गया अगर yellow and round है सारे? तो then he has done self pollination, मतलब सेम प्लांट को एक दूसरे के साथ, मतलब एक के साथ पॉलिनेट कराया, सेम प्लांट के मेल पार्ट फीमेल पार्ट को क्रॉस करवाया, एंड F2 जनरेशन में ही हैज गॉट दिस रेशियो. राउंड येलो वाले उसको 9 मिले, राउंड ग्रीन वाले उसको 3 मिले, रिंकल्ड येलो 3 and wrinkled green 1 condition. So he would be getting this ratio. This is the phenotype ratio of F1 this dihybrid cross, right? तो यहाँ से ये question is important. Genotype इसकी नहीं पूछेगा, so you don't have to remember that, right? Next is test cross. So बच्चा, we know what is the test cross. अब यहाँ पर मेंडल को कैसे पता चलेगा भाई कि that obviously that particular parent is dominant pure dominant or heterozygous dominant. तो अगर उसे देखना है कि यहाँ पर ये dominant heterozygous है, ये homozygous है, तो what he would be doing, he would be taking dominant वाला plant and obviously he would cross it with the recessive parent. हमेशा recessive parent के साथ ही उसको cross करवाएगा. तो there can be 2 condition, right? So dominant trait ऑफस्प्रिंग, तो मतलब यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट दिखाने वाला ऑफस्प्रिंग कैन बी हेट्रोजाइगस
और होमोजाइगस टॉल। तो उसमें ऐसा वाला कैरेक्टर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दिखेंगे तो दोनों ही टॉल, बट हम जानना चाहते हैं कि वो ऐसी कंडीशन है प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट की है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की है। सो उसके लिए बेस्ट तरीका है टू क्रॉस इट विद द रेसेसिव पेरेंट, राइट। तो ऑब्वियसली जब इसने कराया इनको क्रॉस, तो जब यहाँ पर इसके साथ क्रॉस कराएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये लगाओ, ये गेमेट बनेंगे और इसके ये गेमेट बनेंगे। तो इस केस में ऑल टॉल जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे बच्चा, दे वुड बी हैविंग दिस जीन। सो ऑब्वियसली ऑल टॉल व्हेन वी विल बी टेकिंग होमोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन जब हम हेट्रोजाइगस ले रहे हैं, यानी वी आर टेकिंग दिस कंडीशन, तो यहाँ पर इसके गैमीट बना लो एंड ऑब्वियसली इसको रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना है। तो व्हाट कंडीशन वी आर गेटिंग, दो टॉल और दो ड्वार्फ वाले, तो मीन्स ऑब्वियसली 2:2 और 1:1 अगर इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मीन्स इफ दिस वुड बी द हेट्रोजाइगस कंडीशन, अगर यहाँ पर वो ऑफस्प्रिंग जो हमारा आया है वो हेट्रोजाइगस टॉल हुआ, और इफ वी क्रॉस इट विद द रेसेसिव पेरेंट, रेशियो वुड बी दिस। और अगर वहां पर वो जो आया है ट्रेट, अगर वो होमोजाइगस हुआ, होमोजाइगस टॉल हुआ, तो वी विल बी गेटिंग दिस रेशियो, मीन्स ऑल टॉल रेशियो। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट कि जो यहाँ पर हमारे पास ऑफस्प्रिंग आया है वो डोमिनेंट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, वी कैन फाइंड इट ऑल्सो, राइट। सो दिस इज द टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट यहाँ पर मेंडल से हटकर कुछ यहाँ पर कंक्लूजन थे, राइट। सो दैट इज बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। सो यहाँ पर ये वाला जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। सो ये अपार्ट फ्रॉम मेंडल है, राइट। हाँ, और मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसके कुछ लॉज भी उसने दिए थे, राइट। सो व्हाट आर दोज लॉज, मेंडल्स के लॉ, दैट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। सो मेंडल के कौन कौन से लॉ थे बच्चा, एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, इफ देयर इज अ जीन और उस जीन में अगर ये कंडीशन होती है, मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन, देन ऑब्वियसली डोमिनेंट अलील वुड एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो ये कैसा होगा, राउंड। सपोज ये कंडीशन है, कैसा होगा, टॉल। सो दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, की मतलब डोमिनेंट वाला वुड एक्सप्रेस इटसेल्फ, राइट। Another one is law of segregation. So डाईहाइब्रिड क्रॉस से, सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये दो लॉज इन्होंने दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि गैमीट बनने के टाइम पर these two allele of one gene get segregated। तो जब हम इनके गैमीट बनाएंगे these two would get segregated, right, and pure gamete would be formed, एक में कैपिटल T एक स्मॉल t, राइट। सो यू कैन से दैट एक जीन के दो अलील होते, इट वुड सेपरेट, टू अलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, एज सिंपल एज दैट, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, राइट। तो मतलब ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड लास्ट लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड बच्चा ये कंक्लूजन इन्होंने कब दिया था, ये इन्होंने तब कंक्लूजन दिया था आफ्टर द डाईहाइब्रिड क्रॉस, राइट। तो ये वाला यहाँ पर दिया था डाईहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन। सो डाईहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन है, राइट। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, वी नो then that if we are taking the two gene together, one for round, another one for color, one is the shape, another one is color, and when they are forming gene, जब ये जीन बनाते हैं तो क्या होगा, दोनों जीन का एक अलील एंड दोनों जीन का दोनों अलील, सॉरी वन जीन के टू अलील में से वन अलील गेट सेपरेटेड एंड वन जीन का जो दूसरा अलील है, जो दो अलील हैं उसमें से एक गैमीट में जाएगा। सो मीन्स यहाँ पर क्या है कि दे वुड इंडिपेंडेंटली सेपरेट एंड ऑब्वियसली दे आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को इंटरमिक्स हो रहे हैं या फिर शेप जो है वो कलर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या फिर दे आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। नो, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। गैमीट्स के टाइम पर दे वुड सेपरेट एंड फिर से यहाँ पर कंबाइन होकर अपना इंडिविजुअल एक्सप्रेशन देंगे, एक कलर देगा एक शेप देगा, दे डोंट इन्फ्लुएंस ईच अदर। बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लेटर डिसअप्रूव्ड बाय
थॉमस मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट से डिसअप्रूव हो गया था। वो कौन सा था? लिंकेज रिकॉम्बिनेशन से। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर अगर दो जीन साथ में हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, कभी कभी वो लिंकेज भी होते हैं, मतलब लिंक भी होते हैं, एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। तो वी वुड सी कि ये डिसअप्रूव हो गया था बाद में थॉमस मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से, राइट। तो बच्चा ये तीन लॉज आपको याद रखने हैं। ये सिंपल मतलब है इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से एक दूसरे पर आत्मनिर्भर, राइट, अपने किसी पर निर्भर नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, है ना, आत्मनिर्भर है, एंड दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इंडिविजुअली। अगर कलर का है तो कलर दे रहा है, शेप का है तो शेप दे रहा है, दे आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर अकॉर्डिंग टू मेंडल। ये सारा था, ठीक है। तो बच्चा नेक्स्ट वी वुड सी, अब मेंडल से हटकर जो रेशियो आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो मतलब यहां पर क्या है कि सपोज एक रेड कलर का फ्लावर है, एक व्हाइट कलर का फ्लावर है। सो यहाँ पर रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से, और व्हाइट को स्मॉल आर। सो दे आर गेटिंग सेपरेटेड दिस वे। तो जब गैमीट बन रहे हैं तो इनके अलील ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली फिर से ये इनका फर्टिलाइजेशन होगा एंड दे विल बी फॉर्मिंग दिस कंडीशन। सो F1 जनरेशन वुड बी दिस कंडीशन। तो मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या होता है? these when this is the condition, heterozygous condition में no one is dominant, no one is recessive, means dominant वाला completely इसको suppress नहीं कर पा रहा है, इसको दबा नहीं पा रहा है। तो when इसको दबा नहीं पा रहा तो क्या होगा? इस कंडीशन में कुछ इंटरमीडिएट कलर आएगा, दैट इज पिंक कलर। वी विल बी गेटिंग दिस, क्या बोलते हैं इसको, एक इंडिविजुअल सा कलर आएगा, दैट इज द पिंक कलर, राइट। तो यहां पर ये चीज आपको याद रखना है कि दिस कंडीशन वुड गिव पिंक कलर। सो एक है रेड कलर। सो बच्चा यहां पर ऑब्वियसली देन दिस इज द कंडीशन। अब हम F2 जनरेशन देखेंगे, राइट। सो F2 जनरेशन में क्या देखा हमने? सेम फ्लावर का हमने मेल पार्ट लिया, सेम फ्लावर का फीमेल पार्ट, तो जीन वुड बी सेम। और यहाँ पर चार कंडीशन आई। दिस वन कंडीशन वुड बी रेड। यहाँ पर ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है इट वुड बी पिंक, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। डोमिनेंट वाला अच्छे से रेसेसिव को सप्रेस नहीं कर पाए, तो दे आर गिविंग इंटरमीडिएट कैरेक्टर। एंड RR वाला इज व्हाइट कलर। सो यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो मेंडल से कुछ अलग है। सो बच्चा फिनोटाइप रेशियो अकॉर्डिंग टू मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की 3:1 आनी थी, बट हियर 1 इज रेड, 2 कंडीशन इज पिंक एंड 1 इज व्हाइट। तो मतलब ये वाली रेड कंडीशन है, दिस इज पिंक एंड दिस इज व्हाइट। तो F2 जनरेशन के लिए यहाँ पर 3:1 ना आकर फिनोटाइप रेशियो इज 1:2:1 एंड इट इज सेम एज जीनोटाइप रेशियो। तो बच्चा ये फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो ये सेम है इसके लिए, राइट। तो इट वुड बी 1:2:1। सो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो वुड बी सेम फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज, जल्दी बताओ कौन सा होगा? स्नैप ड्रैगन फ्लावर, और इट इज ऑल्सो नोन एज Antirrhinum species. So these are example, as simple as that. So let me take you ahead now. तो बच्चा this is all about the incomplete dominance, right? तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, co-dominance के example आपको याद रखने हैं. So what is the example of co-dominance? Obviously ABO blood type. So ABO blood type में क्या होता है? A and B are co-dominant with each other. कि co-dominant over each other. So A और B अगर साथ में है तो दे आर co-dominant, मतलब इनका ऐसा नहीं है कि मैं खुद को एक्सप्रेस करूंगा या तुम खुद को एक्सप्रेस करना. Both of them are co-dominant. So when they both of them are together present in this way, तो यहाँ पर अगर एक जीन में ये दोनों अलील हैं तो this person would be having AB blood group. तो मतलब A and B is the best example of the co-dominant, means they are equally dominant on each other, they are equally expressive. जहाँ की अगर O की बात करेंगे तो O is always recessive, तो ये हमेशा recessive रहेगा and it would express itself only in condition when obviously it is present
इन होमोजाइगस कंडीशन तभी किसी का ओ ब्लड ग्रुप होगा, वरना अगर ये ए के साथ आ गया तो ऑब्वियसली दैट पर्सन हैविंग ए ब्लड ग्रुप, बिकॉज ओ वाला बेचारा रेसेसिव है, ऑलवेज रेसेसिव, ऑलवेज रेसेसिव, एंड इसको ए बी हमेशा सप्रेस कर देते हैं। बी के साथ आएगा तो बी ब्लड ग्रुप होगा, बट ओ ब्लड ग्रुप तभी होगा व्हेन इट विल बी इन डोमिनेंट, व्हेन इट विल बी इन होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन ए और बी का अलग फंडा है, दे आर को डोमिनेंट ओवर ईच अदर। सो को डोमिनेंस का बेस्ट एग्जाम्पल इज ABO blood group. And plus, one of the amazing thing we can observe here कि यहाँ पर एक जीन के लिए, वैसे हम पढ़ते थे एक कैरेक्टर के लिए सिर्फ 2 अलील रिस्पॉन्सिबल हैं, बट इन अ पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे पूरी पॉपुलेशन में, तो किसी का ब्लड ग्रुप ए था, किसी का ब्लड ग्रुप बी था, किसी का ओ था और किसी का ए बी था। तो मतलब एक जीन के लिए वी आर हैविंग 3 डिफरेंट अलील। So, bacha, this is the example of the multiple allelism. Multiple allele for one gene, for one character. Multiple allele for one gene or one character that you have to remember. So, this is so important, right? ABO blood group में multiple allele for one gene or one character is so important, right? So, this is basically codominance, which you have to remember. Another phenomena is chromosomal theory of inheritance, which was given by the Sutton on Bovary, right? तो ये क्या बोलते थे भाई कि जो जीन है दैट इज द इंडिविजुअल, राइट? वो सिर्फ एक सिंगल ऐसा है कि ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए एक्सप्रेस कर रहा है, एंड मेंडल यूज टू टॉक अबाउट द फैक्टर, वो फैक्टर कुछ नहीं, जीन ही है। और वो जीन कहाँ प्रेजेंट है? ऑब्वियसली मेनी जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। सो मेंडल एक जीन की बात कर रहा था, लेकिन जो कैरेक्टर एक्चुअली में एक्सप्रेस होता है वो पूरे वो जो जीन है वो क्रोमोसोम के ऊपर है, राइट? तो ऑब्वियसली जीन और क्रोमोसोम का उन्होंने बताया था कि जैसे मेंडल बोलता था वो एक्चुअली क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो जो इनहेरिटेंस का सीक्वेंस है या फिर जो इनहेरिटेंस होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर होते हैं, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होते हैं जिसके ऊपर जीन लगे हुए हैं, ठीक है? तो उन्होंने कहा भाई जीन भी जैसे पेयर्स में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक जीन को 2 अलील से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर्स में होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट? दूसरा ये क्या बोलते थे, सेग्रीगेशन यहाँ पर होता है, सेग्रीगेशन ऑफ अलील इन गैमीट्स, सेग्रीगेशन इन गैमीट होगा, एंड सेम क्रोमोसोम भी गैमीट बनने के टाइम पर हाफ हो जाता है। तो जैसे 46 क्रोमोसोम है, गैमीट में सिर्फ 23 जाएंगे, राइट? उसके बाद यहाँ पर ये बोलते थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर रिलेशन नहीं है। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखा जाता है कि इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं, राइट? यहाँ पर भी कुछ इन्होंने ऐसा ही बोला। सो नेक्स्ट यहाँ पर जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा कि जैसे मेंडल जीन के बारे में बात करते थे, बट एक्चुअली में जीन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। सो उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस। सो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करी, राइट? सो यहाँ पर इन्होंने कहा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करी, विच वॉज गिवन बाय द सटन एंड वोवरी, राइट? तो इन दोनों ने ये सब बात करी कि ऑब्वियसली जीन इज समहाउ सिमिलर टू द क्रोमोसोम एंड जीन्स प्रेजेंट ओवर द क्रोमोसोम, राइट? क्रोमोसोम कब सेपरेट होगा, उन्होंने पूरा मियोसिस प्रोसेस बता दिया कि एनाफेज के टाइम पर सेपरेट होते हैं, ठीक है? तो बच्चा फाइनली ये जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय टी.एच. मॉर्गन। तो इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव करा? सो एक्सपेरिमेंटली proved by Sutton and Bovary, sorry, proved by T.H. Morgan, right? तो यहाँ पर T.H. Morgan ने इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव दिया। किसके ऊपर? थॉमस हंट मॉर्गन ने काम किया था। ऑब्वियसली ही हैज डन एक्सपेरिमेंट ऑन द ड्रोसोफिला। सो ही हैज टेकन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, जिसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, राइट? अब यहां पर वाई ही हैज टेकन फ्रूट फ्लाई फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? पहला, इट वॉज इजिली ब्रीड,
जल्दी इसकी पैदावार होती थी, दैट इज 2 वीक्स के अंदर अंदर एकदम बच्चे पैदा कर लिए खूब सारे सारे। दूसरा, यहाँ पर ज्यादा ऑफ स्प्रिंग हो पाती थी, प्रोड्यूस्ड मोर ऑफ स्प्रिंग्स इन वन मेटिंग। और इसकी लाइफ साइकिल 2 हफ्ते की होती है, तो मतलब 2 हफ्ते में खूब सारे बच्चे पैदा कर सकता है। एंड ऑब्वियसली इजीली अवेलेबल, है ना, इनको पालना भी मुश्किल नहीं है, एंड वी वुड बी गेटिंग रिजल्ट वेरी फास्ट। सो दीज आर द रीजन फॉर द एक्सपेरिमेंट। हमने इसको मॉडल लिया, एज अ मॉडल टी.एच. मॉर्गन ने इसको लिया। In this experiment, he actually explained this theory, this linkage theory. तो अकॉर्डिंग टू हिम क्या होता है कि जैसे ही क्रोमोसोम है, इसमें जो जीन पास पास होगा, जो जितना ज़्यादा पास होगा, वो उतना ही रिकॉम्बिनेंट नहीं करेगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि ऑब्वियसली वी नो दैट होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोसिस अंडरगो क्रॉस ओवर, जो आप लोगों ने सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो दे अंडरगो दिस क्रॉस ओवर प्रोसेस। लेकिन यहां पर जो क्रॉस ओवर होता है, तो अकॉर्डिंग टू द मेंडल, ऑल द जीन्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। बट यहां पर थॉमस मॉर्गन ने क्या देखा कि कुछ जीन्स पास पास में है, सो दे आर लाइक अ क्लोज फ्रेंड एंड दे वुड मूव टुगेदर। तो अगर क्रॉस ओवर भी कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन भी हो रही है, तो भी वो साथ में जाएंगे। यू कैन नॉट सेपरेट देम बिकॉज दे आर सो क्लोज टू ईच अदर। सो यहां पर इन्होंने, थॉमस मॉर्गन ने क्या ऑब्जर्व किया, लिंकेज मीन्स जीन्स आर क्लोजर। जो जीन क्लोजर है, जीन्स आर क्लोजर, उनका रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम हो जाएगा। सो मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन। सिंपल अगर मैं उस पैराग्राफ को कंक्लूड करूं तो शब्दों में, सो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। जीन जितने पास हैं, मतलब वो उतना ही रिकॉम्बिनेशन से उनको तुम अलग नहीं कर सकते, उसमें उतना ही रिकॉम्बिनेशन कम है, उतना ही नया कॉम्बिनेशन कम बनेगा, और जीन एज इट इज चले जाएंगे आगे, साथ में चले जाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो व्हेन जीन्स आर क्लोजर, नोन एज लिंकेज, देन द रिकॉम्बिनेशन चांसेस, नया कॉम्बिनेशन के चांस बनने के चांसेस आर वेरी लेस, राइट। सो याद रखना बच्चा कि जितना ज्यादा जीन पास में होगा, उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा, लेस रिकॉम्बिनेशन वुड बी देयर। जितना ज्यादा लिंकेज, राइट, जितना ज्यादा लिंकेज होगा, ऑब्वियसली उतना ही रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम है, लेस रिकॉम्बिनेशन। साफ सीधी बात है। और जितना दूर ज्यादा होगा, उतना ही कम लिंकेज है। जीन जितने ज्यादा दूर होंगे, सपोज एक यहां पर है और एक इधर है, तो ऑब्वियसली दे वुड बी हैविंग लेस लिंकेज, मतलब ज्यादा दूरी पर है, मोर डिस्टेंस। जीन्स हैविंग मोर डिस्टेंस, तो दे वुड बी अंडरगोइंग द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। वो जल्दी से क्रॉस ओवर करके अलग हो सकते हैं। वी कैन सेपरेट देम, क्योंकि उनके बीच का जो लगाव है वो अच्छा नहीं है। लिंकेजेस, फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है ना। तो ज्यादा डिस्टेंस है, दूरी ज्यादा है, तो लिंकेज कम है, तो हम इनको रिकॉम्बिनेशन करा सकते हैं, तो उतना ही रिकॉम्बिनेशन अब ज्यादा होगा। तो मीन्स दीज आर हैविंग इनवर्स रिलेशन, right? So according to this scientist T.H. Morgan, he has given this theory, right? And obviously he disapproved, very important point, इसने किसकी theory disapprove करी? Write down in the chat box. Obviously he has disapproved law of independent assortment, because according to Mendel, all genes are independent, but here we have seen genes which are closer, we cannot separate them, they are dependent on other. So law of independent assortment यहाँ पर खत्म, disapproved. But law of segregation हमेशा uniformly, or you can say universally accepted है, because law of segregation होगा ही होगा. During gamete formation, genes would get separated in everywhere. So that is universally accepted, but it is disapproved by ये मॉर्गन की थ्योरी, टी.एच. मॉर्गन। फिर टी.एच. मॉर्गन का एक स्टूडेंट का नाम आता है, दैट इज द एल्फ्रेड स्टर्टवेंट, राइट। ये साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है इधर एनसीईआरटी में, राइट। सो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ही हैज डन
जीन मैपिंग मतलब जैसे कि वो होता है ना गूगल मैप, दैट इस घर के बाद ये वाला घर है। सो ही हैज डन दैट कि इस क्रोमोसोम में इस जीन के बाद ये जीन है, फिर ये जीन है, फिर ये जीन है। सो जीन मैपिंग मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इसने ही निकाला था, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, गूगल मैप जैसे होता है, इसने जीन मैपिंग कर डाली। सो एल्फ्रेड स्टुडवेंट इज द साइंटिस्ट, इज द स्टूडेंट ऑफ टीएच मॉर्गन एंड ही हैज गिवन दिस जीन मैपिंग। तो ये छुपी हुई स्टेटमेंट है विच यू हैव टू लर्न, है ना। अब यहाँ पर एक ये डायग्राम है जो बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है, एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ टीएच मॉर्गन। तो भाई टीएच मॉर्गन ने क्या करा था ना, यहाँ पर फीमेल और मेल के सेक्स क्रोमोसोम ड्रोसोफिला के लिए थे। कौन से क्रोमोसोम बचा? सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। And what he has seen, he has taken yellow bodied organism, yellow और white body, yellow body और उसकी white eyes लिए, and obviously दूसरे वाले का brown body and red eye which is basically the white type। white type मतलब जिसके अंदर already जो character हैं वो original वाले हैं, right। तो मतलब यहाँ पर brown body वाला था ये और red eye वाला मेल लिया। एंड बच्चा नाउ यू कैन सी ही हैज टेकन दिस सेक्स क्रोमोसोम जहां पर येलो बॉडी एंड व्हाइट आई वाला कैरेक्टर था, एंड ऑब्वियसली व्हाइट टाइप मीन्स ब्राउन आई, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई हैज की। So you can see these two gene, Y for body, yellow body and W for white color eye, Y plus for brown body and W for red eye, है ना। दोनों पास पास में, बहुत पास में है। तो यहाँ पर जब इनको क्रॉस किया गया तो एक सिंपल मैं कंक्लूजन इसमें बता देती हूँ। व्हाट इज द कंक्लूजन? CF2 जनरेशन में इन्होंने क्या देखा कि अगर दो जीन ज्यादा पास होंगे तो ऑब्वियसली उनके रिकॉम्बिनेशन मतलब नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम होंगे, एज आई हैव टोल्ड यू। सो रिकॉम्बिनेशन सिर्फ कितने बने? 1.3% बने, लेकिन जो ओरिजिनल पेरेंट वाले कैरेक्टर हैं वो ज्यादा रह गए। क्यों? क्योंकि जीन्स आर क्लोजर, and when linkage is ज़्यादा, when genes are so closer, then recombination would be less। तो बच्चा recombination उस केस में कम होगा। तो लिंकेज ज़्यादा मतलब डिस्टेंस क्या होगा? उनके बीच का कम होगा, राइट। एंड सेम क्रॉस बी के केस में अगर देखेंगे तो सी डब्ल्यू और एम कितनी दूरी दूरी पर है। व्हाइट बॉडी, मिनिएचर बॉडी, मतलब छोटी सी व्हाइट बॉडी है। सो व्हाइट मिनिएचर एंड अनदर वन इज वाइल्ड टाइप। तो यू कैन सी द डिस्टेंस। ऑब्वियसली इसके कंपैरिजन में, वाई डब्ल्यू के कंपैरिजन में डब्ल्यू एम का डिस्टेंस इज मोर। सो व्हेन द डिस्टेंस इज मोर बिटवीन द जीन मतलब लिंकेज कम है, और रिकॉम्बिनेशन मतलब नया कॉम्बिनेशन जो पेरेंट से ऑब्वियसली पेरेंट्स की ही जीन से एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा जो पेरेंट्स में, दोनों पेरेंट में जैसा नहीं था, राइट। तो एक पेरेंट में पूरा येलो है, एक में ब्लू है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली ब्लू येलो का एक कॉम्बिनेशन, एक नया कॉम्बिनेशन आ गया। सो उसमें रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर 37%, यहाँ पर कितना था? ओनली 1%, यहाँ पर 37%। सो रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज्ड। पेरेंटल कैरेक्टर comparison to it decreased. Why? Because of this. Simple conclusion. That's all. And as this is the summary part, quick revision part, so this is the conclusion I have given to you, right? And which I'm pretty sure it must be clear to you. When linkage is more, genes are closer, we cannot make recombination. Recombination would be less, right? So that is the conclusion here. Next topic in our NCERT is polygenic inheritance. So bacha, when we talk about polygenic inheritance, so as the name suggests, poly means many, genic means gene. So many genes are responsible for controlling one character. So you can say that one character is controlled by many genes. One character is controlled by many genes. बहुत सारे genes are responsible to basically control one character, right? तो मतलब 2 से ज़्यादा जीन होंगे। जैसे स्किन कलर is controlled by 3 genes, right? तो यहाँ पर 3 genes responsible हैं स्किन कलर के लिए। तो ये 1 जीन, 2 जीन, 3 जीन जब साथ में इंटरेक्ट करेंगे then we would be having different skin type.
So example of polygenic inheritance is skin color, right? And it is controlled by 3 genes. ABC से represent कर रहे हैं हम उनको. As simple as that, right? So this is the polygenic inheritance. Another topic in NCERT जहां से question पूछेगा pleiotropy. And बच्चा pleiotropy means one gene is basically influencing, it has influence on or influencing multiple phenotype. मतलब एक जीन बहुत सारे फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है ना मजेदार बात. तो मींस एक जीन में अगर कुछ चेंज हुआ तो बहुत सारे फिनोटाइप अफेक्ट होने वाले हैं, राइट? सो व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस? सिकल सेल अनीमिया. If somebody has sickle cell anemia, they would be having various problems. बहुत सारी organs एक साथ dysfunctioning करना शुरू करेंगे. They would be affected, right? So बच्चा sickle cell anemia is the best example. And another example is the phenylketonuria. Very important. Phenylketonuria is basically because of the phenylalanine enzyme. Phenylalanine hydrolase enzyme is basically mutated, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा जब वो enzyme is mutated, phenylalanine hydrolase enzyme is mutated. So you don't have to, yes, you have to remember this enzyme name. And what is the name of enzyme? Phenylalanine hydroxylase. ये वाला एंजाइम यहाँ म्यूटेटेड हो गया. एंड इसके म्यूटेशन की वजह से कितने फिनोटाइप? मेनी फिनोटाइप्स आर अफेक्टेड. लाइक वो इंसान मेंटली रिटार्डेड है, मेंटल रिटार्डेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट स्किन पिगमेंटेशन कम हो जाएगी तो रिड्यूस स्किन की पिगमेंट, हेयर पिगमेंट. तो मतलब देख रहे हो कि मतलब कैसे एक में चेंज आने की वजह से मल्टीपल कैरेक्टर्स आर पिगमेंटेशन, राइट? मल्टीपल कैरेक्टर्स आर अफेक्टेड. सो सिंपल मतलब एक जीन की वजह से मल्टीपल फिनोटाइप मीन्स कैरेक्टर्स आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड. So two example, sickle cell anemia and phenylketonuria given in NCERT, you have to remember it, right? As simple as that. Next part is sex determination. कैसे sex determination होगा different animals में? So obviously X body यहाँ पर Henkin ने देखा था. Henkin is a scientist. So obviously X body is seen by Henkin और उन्होंने कहा था this is responsible for the sex determination, right? तो जैसे human में and Drosophila में we are having the same condition in both. So human और Drosophila में male में जो sex chromosome है वो यहाँ पर control करेगा like X और Y. These are the sex chromosome. And in case of female, obviously sex chromosome is XX, which is responsible for the sex determination. राइट. सेम अगर बर्ड्स की बात करेंगे तो बच्चा बर्ड्स के केस में फीमेल हैविंग हेट्रोगेमेटिक कंडीशन, इसमें दो अलग अलग गेमीट्स हैं इन केस ऑफ फीमेल, एंड मेल हैविंग द होमोगेमेटिक मीन्स दोनों गेमीट, दोनों अलील गेमीट के Z. हमारे केस में फीमेल होमोगेमेटिक है एंड मेल हेट्रोगेमेटिक है. बट इनके केस में उल्टा है, फीमेल हेट्रोगेमेटिक है एंड मेल होमोगेमेटिक है, राइट? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है. नेक्स्ट है बच्चा इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में क्या होगा? जैसे कि ग्रास हॉपर की बात करें, सो ग्रास हॉपर में मेल वुड बी हैविंग XO टाइप एंड फीमेल वुड बी हैविंग XX टाइप. तो ये चीज आपको याद रखना है कि इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ द ग्रास हॉपर, राइट? ये क्वेश्चन है NCERT में एंड ऑब्वियसली यहाँ पर एग्जाम में भी पूछे हुए हैं. हनी बी, इफ वी टॉक अबाउट हनी बी तो वी नो इट इज बेसिकली हेप्लोडिप्लॉन्टिक. अब ये हेप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन इज पेक्यूलियर कंडीशन इन हनी बी, राइट? तो यहाँ पर हेप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन है. वी नो इट वेरी वेल एंड बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फीमेल के अंदर 32 क्रोमोसोम होंगे और मेल इसमें हेप्लॉइड होता है. मेल इज हेप्लॉइड, उसके अंदर हाफ सेट क्रोमोसोम है, फीमेल में डिप्लॉइड है.
तो बच्चा यहाँ पर फीमेल में क्या होता है, ऑब्वियसली मियोसिस होगा इन केस ऑफ फीमेल, एंड मियोसिस के केस में यहाँ पर गैमीट बनेंगे। 16 क्रोमोसोम हाफ हाफ हो जाएगा, 16 एक में 16 एक में। मेल के केस में अगर गैमीट बनने होंगे तो इसमें मियोसिस नहीं होता है, सिर्फ माइटोसिस ही होगा बेचारे का, तो 16 गैमीट बनेंगे, राइट। सो यहाँ पर होगा क्या कि ऑब्वियसली इन केस ऑफ फीमेल अगर बनना है तो ऑब्वियसली दिस इज द अनफर्टिलाइज्ड एग। सो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा एक, अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, और एक एग फर्टिलाइज हो गया मेल गैमीट के साथ। सो दिस इज द गैमीट ऑफ मेल एंड दिस इज द गैमीट ऑफ फीमेल। तो बच्चा एक यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग होगा और एक यहाँ पर फर्टिलाइज्ड हो जाएगा एंड वुड बी फॉर्मिंग 32 क्रोमोसोम, मतलब ये जाइगोट बना, फर्टिलाइज्ड एग है। एंड बच्चा दिस जाइगोट वुड फॉर्म द फीमेल। फीमेल हमेशा डिप्लॉयड होएगी, तो फीमेल होगी वर्कर बी। वर्कर bees are female and queen is female who are always diploid, but बेचारा मेल अनफर्टिलाइज्ड एग से ही डिवाइड हो होकर बनेगा किसमें, पार्थिनोजेनेसिस इसको बोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ड्रोन्स, मतलब मेल बी वुड बी फॉर्म्ड, राइट। ड्रोन्स और ड्रोन्स हमेशा हेप्लॉइड ही होते हैं, नो डिप्लॉइड। सो बेचारों की बॉडी हेप्लॉइड ही है और यहाँ पर फीमेल इज ऑलवेज डिप्लॉयड। सो इसलिए इनका सेक्स डिटर्मिनेशन हेप्लो मीन्स मेल इज हेप्लॉयड, sorry, male is haploid and female is diploid, as simple as that, है ना। सिंपल रिवीजन, सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको दी है जिससे कि आपके लिए एकदम क्विक रिवीजन हो, राइट। नेक्स्ट पार्ट इन द एनसीईआरटी इज म्यूटेशन। एंड बच्चा म्यूटेशन जो होती है ऑब्वियसली यहाँ पर मेंडेलियन होगी। मेंडेलियन मतलब जीन में कोई चेंज आ जाना, राइट। मेंडेलियन मतलब जेनेटिक लेवल पर, जीन के लेवल पर चेंज आना, डीएनए के लेवल पर चेंज आना। एंड यहाँ पर इफ वी टॉक अबाउट क्रोमोसोमल, तो ऑब्वियसली क्रोमोसोमल के केस में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आएगा, एंड वी वुड सी ऑल द थिंग्स इन डिटेल वे, राइट। सो कुछ म्यूटेशन मेंडेलियन होंगी जिसमें सिर्फ जीन क्या होता है, this is the DNA, long chain of DNA, and you know some of the region of the DNA is functional, that is known as gene. So gene is nothing, functional part of DNA that would code for certain characters, right। अब यहाँ पर देखो बच्चा एक होता है, यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद द जेनेटिक पार्ट, और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़नी है दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस। पहले मैं ये बता देती हूँ पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, लेट्स डिस्कस इट। पेडिग्री एनालिसिस मतलब फीमेल पूरी फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए करी जाती है। सो व्हेन वी वांट टू डिटेक्ट एनी जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री, दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस। सो बच्चा यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस जो है वो दो तरह के डिजीज के लिए की जाती है। वन इज द ऑटोसोमल डिसऑर्डर। सो वी आर हैविंग द 46 chromosome. Out of that, 22 pairs are autosomal chromosome and XY is sex chromosome. So कुछ डिजीज होती हैं ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज एंड कुछ होंगी सेक्स लिंक्ड डिजीज, मीन्स XXXY में कुछ चेंज आ जाए, राइट। सो बच्चा सेक्स लिंक्ड डिजीजेस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। व्हाई वी वुड से इट, लेट्स डिस्कस फर्स्ट विद द ऑटोसोमल, कैसे डिटेक्ट करेंगे। सो बच्चा ऑटोसोमल अगर हमें डिटेक्ट करना है तो इसमें भी कुछ रेसेसिव होंगी और कुछ बीमारियां यहाँ पर क्या होंगी, डोमिनेंट होंगी। सो लेट्स डिस्कस विद द रेसेसिव। सो देखो यहाँ पर मैं सिर्फ रेसेसिव के कैरेक्टर्स बता रही हूँ कि आपको कैसे उनको पहचानना है, राइट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर कोई बीमारी रेसेसिव है तो उसमें जनरेशन स्किप करेगी, स्किपिंग ऑफ जनरेशन। सो मतलब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स में वो बीमारी नहीं दिख रही है लेकिन बच्चों में दिख जाए, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया। तो बच्चा यहाँ पर पेरेंट्स कैरियर हो सकते हैं, जैसे सपोज करो इसको सिकल सेल अनीमिया का कैरियर है और ये फीमेल भी सिकल सेल कैरियर है। इनकी कोई बीमारी नहीं होगी, दे आर ओनली कैरियर बिकॉज दिस इज द रिसेसिव डिजीज। लेकिन इनके बच्चों में फीमेल से एक एस जा सकता है, मेल से एक एस आ सकता है, और जिस भी बच्चे में ये कॉम्बिनेशन गया ना
वो बच्चा बेचारा, समझ जाओ क्या होगा, वो बेचारा पीड़ित होगा, राइट? ही वुड बी हैविंग डिजीजेस। सो यहाँ पर स्किपिंग ऑफ जनरेशन कैन बी सीन, मतलब ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है लेकिन पेरेंट्स नॉर्मल दिख रहे हैं, राइट? दे डोंट हैव एनी डिजीज बट दे आर कैरियर फॉर द डिजीज। सो स्किपिंग ऑफ जनरेशन कैन बी सीन। ऑटोजोमल है तो फीमेल मेल आर इक्वली अफेक्टेड। तो अगर आप कोई भी टेबल देख रहे हैं तो उसमें मेल फीमेल इक्वली अफेक्टेड वुड बी देयर। very important, these two conditions you have to remember for autosomal recessive, right? तो अब इसमें कौन कौन सी डिजीज हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। तो सबसे पहली डिजीज इज सिकल सेल अनेमिया। इसमें क्या होगा बच्चा, एक पॉइंट पर चेंज हो जाता है, एक पॉइंट मतलब सिर्फ एक बेस पेयर्स में चेंज होएगा, राइट? सो इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। यहां से क्वेश्चन पूछेगा। एंड ऑब्वियसली कहां पर पॉइंट म्यूटेशन हुआ, तो जो 6th पोजिशन है ऑफ अमीनो एसिड ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, हीमोग्लोबिन में चेंज होता है सिकल सेल अनीमिया में, राइट? 6th पोजिशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट? तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होगी उसके 6th पोजिशन पर जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड is amino acid on 6th position is replaced by valine. किससे replace हो गया बच्चा? Replaced by valine and we know it very well. So glutamic acid जो है बच्चा उस वो GAG उसके लिए कोड होना चाहिए था but it would be replaced by GUG। देख रहे हो, सिर्फ A से U लगने के जगह मतलब एडिनोसाइन वाला आना चाहिए था बट यूरासिल लग गया। एंड सिर्फ इतने चेंज से, इतने पॉइंट म्यूटेशन से पूरी बीमारी सिकल सेल अनीमिया हो सकती है, राइट? एंड बच्चा दिस इज द क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिकॉज दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। क्वालिटेटिव डिजीज है। क्वालिटेटिव डिजीज मतलब क्या है, इसमें क्वालिटी खराब हो जाती है, जो आरबीसीज का शेप है वो बिगड़कर सिकल सेल जैसा हो जाता है, ऐसे पिचक जाता है, सिकल सेल जैसा हो जाता है, राइट? सो बच्चा दैट इज बेसिकली क्वालिटेटिव डिजीज एंड यू हैव टू रिमेंबर व्हाई क्वालिटेटिव, बिकॉज हियर चेंज इन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। तो ये बहुत एक्सट्रैक्ट फॉर्म आपको मिल रहा है, आई एम टेलिंग यू। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सो एक्सट्रैक्ट फॉर्म यू आर गेटिंग, एंड इससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता इसका। एंड अगर ये रिवाइज कर दिया ना पढ़ने के बाद, तो यू विल बी गेटिंग लाइक ऑल द थिंग्स इन योर माइंड, राइट? पूरा माइंड मैप है। नेक्स्ट डिजीज ऑफ रेसेसिव इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। एंड बच्चा फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू इट इज नॉट हैविंग एंजाइम, लैक एंजाइम that is responsible to convert phenylalanine to tyrosine. So phenylalanine actually is the amino acid which need to be converted into tyrosine for proper metabolism, proper functioning के लिए उसको tyrosine में change होना था। But as there is no enzyme, so there is no conversion of phenylalanine to tyrosine. So होगा क्या, phenylalanine actually gets accumulated, बच्चा it gets accumulated and convert into phenyl pyruvic acid। तो मतलब ये accumulate होकर फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्म में इट इज गेटिंग कन्वर्टेड, राइट? एंड ऑब्वियसली यहां पर it would cause mental retardation and lots of the retardation and it would be seen in urine also। तो यहाँ पर excrete in urine, so that's why urea means urine में दिखेगा, so it would excrete out in the urine। and बच्चा this is basically the recessive autosomal disorder। next disease is thalassemia। and बच्चा when we talk about thalassemia तो obviously it is of two types। so यहाँ पर alpha chain of hemoglobin, तो we know hemoglobin having 2 alpha 2 beta chain। so alpha chain में अगर यहाँ पर होता है disturbance, so that is the alpha thalassemia and beta chain में होता है तो beta thalassemia। तो बच्चा बीटा चेन के लिए जो जीन है वो क्रोमोसोम 11 के ऊपर उसका जीन होता है, जीन ऑन क्रोमोसोम 11, राइट? एंड अल्फा के लिए अगर हम देखेंगे तो it is on chromosome 16। it is the gene for the alpha chain is on the chromosome 16, right? तो यहाँ पर HBA
और यहाँ पर HbA1 और A2 होती हैं, ये दो चेन के लिए यहाँ पर जीन है, राइट। तो ये आपको याद रखनी है। तो बच्चा सी, यहाँ पर अल्फा में, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम 16, टू क्लोजली लिंक्ड जीन ऑन क्रोमोसोम 16 आर देयर, राइट। तो जब इन जीन में कुछ कुछ म्यूटेशन आया, सो व्हाट वुड हैपन हियर, so obviously there is some mutation in this gene, and when there is the mutation in these genes, so hemoglobin is not forming. तो यहाँ पर ये वाला क्वांटिटेटिव है, ये कौन सी बीमारी है बच्चा, quantitative disease, quantitative disorder, because actually it is decreasing the number of or quantity of hemoglobin. तो यहाँ पर क्वांटिटी डिक्रीज होती है, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर इस तरीके से म्यूटेशन हुआ कि जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है वो कम बनने लगा है, राइट। सो एक्चुअली दिस इज द क्वांटिटेटिव डिजीज। अगर यहाँ पर कुछ म्यूटेशन हुआ, कम हीमोग्लोबिन बनेगा, बीटा चेन कम बनेगी, और यहाँ पर हुआ तो अल्फा चेन कम बनेगा, राइट। सो इट्स द क्वांटिटेटिव, वेयर एज सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव, बिकॉज वहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। So they have asked these question in NEET as well as NCERT का है, तो they asked this question in the CBSE also, right? तो ये सब था ऑटोजोमल रेसेसिव। और होते हैं बच्चा डिजीज ऑटोजोमल डोमिनेंट, एज द नेम सजेस्ट। डोमिनेंट मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर एक अलील भी बीमार है तो दैट पर्सन वुड बी अफेक्टेड फॉर श्योर, राइट। सो यहाँ पर नो जनरेशन स्किप, तो मतलब अगर पेरेंट अगर बच्चे में है तो उसका एक ना एक पेरेंट जरूर बीमार होगा। नो जनरेशन स्किप इफ चिल्ड्रन इज अफेक्टेड, इफ चिल्ड्रन आर अफेक्टेड। तो अगर कोई भी चिल्ड्रन अफेक्टेड है तो मतलब इसके पक्का पेरेंट्स में वो बीमारी है, वो दिख रही है। सो चिल्ड्रन में यहाँ पर स्किप नहीं हो सकती है। नो जनरेशन स्किप इफ चिल्ड्रन अफेक्टेड, तो मतलब अगर चिल्ड्रन अफेक्टेड है तो भाई पेरेंट्स जरूर अफेक्टेड होंगे, दे हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, राइट, दे हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। एंड बच्चा ये ऑटोजोमल है तो ऑब्वियसली मेल फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड, तो ऐसा नहीं है कि मेल ज्यादा अफेक्टेड है फीमेल कम है, मेल फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड। एंड व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, यहां पर हमारी एनसीईआरटी ने दिया है, दैट इज द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, मस्कुलर डीजेनरेशन, एंड ऑब्वियसली पैरालिसिस वुड हैपन इन दिस केस, as simple as that, right? So यहाँ पर एक प्रोटीन के लिए जीन होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के लिए जीन, that gets mutated, and obviously it would be causing this paralysis, progressive degeneration of muscle. It is autosomal dominant. Second condition of pedigree analysis, कैसी बीमारी हो सकती है बच्चा, sex linked means either sex linked means X chromosome is affected. So इसमें भी कुछ होंगी recessive and कुछ होंगे dominant. And cross-linked is always show criss-cross inheritance. And बच्चा these are so key point. It is the gist of whole NCERT. पूरा निचोड़ दे रही हूँ मैं NCERT का. And that is my promise कि जिसने अच्छे से ये पढ़ा है एक बार go through this, everything would be in your head. That is my promise. Criss-cross inheritance मतलब क्या होता है कि फादर से बीमारी हमेशा डॉटर को जाएंगी, फादर ऑलवेज अफेक्ट हर डॉटर, क्योंकि यहां पर एक एक्स फादर से ही जाएगा। एंड बच्चे के लड़के के अंदर जो बीमारी होगी, सन के अंदर जो बीमारी होगी वो मदर डालेगी। सो मदर ट्रांसमिट डिजीजेस टू सन, क्योंकि एक्स जो है वो सन के पास फादर से कभी नहीं आएगा, फादर से हमेशा वाई आएगा, बट मदर से एक्स आएगा। सो इफ दिस एक्स इज अफेक्टेड मतलब बच्चा गया काम से, राइट। एंड डॉटर के पास जो है बच्चा वो बेसिकली जैसे सपोज करो इसके पास मदर से एक जीन आया और एक फादर से आया, एंड अगर वो फादर से आया हुआ जीन अफेक्टेड था तो दिस डॉटर वुड बी अफेक्टेड। सो फादर से बीमारी जाएगी डॉटर में और मदर से सन में जाएगी, राइट। तो इनमें से भी कुछ होंगी रेसेसिव, मीन्स वो खुद को तभी एक्सप्रेस करेंगे जब डोमिनेंट, जब दोनों साथ में होंगे, राइट। तो ये तभी अपने आप को बीमारी दिखाएगा। सो बच्चा यहाँ पर स्किपिंग ऑफ जनरेशन कैन बी सीन इन फीमेल, स्किप जनरेशन, राइट। तो यहाँ पर अगर ऐसी फीमेल है तो ये कैरियर होगी, क्योंकि इसके अंदर एक ही एक्स अफेक्टेड है, एक ही अलील अफेक्टेड है।
और यहाँ पर बीमार होने के लिए शी शुड बी हैविंग बोथ द अफेक्टेड अलील, तभी ये बीमार होएगी, अफेक्टेड फीमेल है। लेकिन बच्चा मेल के केस में ना सेक्स लिंक्ड में कोई ऐसा चक्कर नहीं है, बिकॉज मेल हैव ओनली एक्स, एक ही एक्स है। अगर वो भी अफेक्टेड निकला तो ये लड़के के अंदर कैरियर कंडीशन नहीं है, ही वुड बी अफेक्टेड। So that's why in recessive condition you can say that male are more affected. Males are more affected. बच्चा this is the gist of निचोड़ है, पूरे पूरे conclusion है आपके पास, right? And female जो होगी, female इस केस में can be recessive. I have told you, female इस केस में recessive हो सकती है, but male किसी भी हालत में नहीं बचने वाला, इसलिए male are more affected here. राइट? सो बच्चा यस यू कैन से दैट। तो यहां पर फीमेल तभी अफेक्टेड होगी, फीमेल वुड बी अफेक्टेड जब उसके दोनों अलील अफेक्टेड होंगे, तभी वो अफेक्टेड होगी, राइट? एंड इसका बेस्ट एग्जांपल इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज क्वीन विक्टोरिया की फैमिली, इसको क्या बोलते हैं वो, विक्टोरिया की फैमिली में ये था, और उसके ज्यादातर जो मेल हैं ऑब्वियसली दे वुड बी हैविंग दिस हीमोफिलिक डिजीज, है ना? और बच्चा कलर ब्लाइंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। एंड कलर ब्लाइंड में बेसिकली रेड ग्रीन का होता है ना? तो रेड ग्रीन कोन के जो जीन होते हैं दैट इज अफेक्टेड, एंड ऑब्वियसली ये सारे जीन कहाँ होंगे, ऑन एक्स क्रोमोसोम, इसलिए यहाँ पर ये सेक्स लिंक्ड है। और ऑब्वियसली मेल आर ज्यादा कलर ब्लाइंड बिकॉज आई हैव टोल्ड यू रीजन फॉर दैट, राइट? सो मेल के केस में ज्यादा सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीजेस दिखती है ना? अब लास्ट एक है बच्चा डोमिनेंट डिजीज, डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड। तो डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड में मतलब यहां पर साफ सीधी बात यह है कि भाई ट्रांसफर डिजीजेस, फादर ट्रांसफर जो है अपनी डिजीज करेगा टू डॉटर, एंड ऑब्वियसली जो फादर जो है वो अपनी डिजीज को ट्रांसफर करेगा डॉटर में, एंड मदर जो है वो दोनों को ही अफेक्ट करेंगी, मदर क्योंकि मदर अपना एक्स बच्चे में भी डालती है और डॉटर में भी डालती है, तो भाई इस केस में तो मदर दोनों को ही बीमार कर सकती है। तो अगर एक भी एक्स किसी में भी अफेक्टेड है तो भाई उसने बीमार होना ही होना है, बिकॉज दिस इज द डोमिनेंट बीमारी। तो ये आपको याद रखना है इस केस में, डोमिनेंट के केस में, एंड ऑब्वियसली इसमें स्किपिंग नहीं हो सकती, राइट? तो बच्चा दिस इज द पेडिग्री एनालिसिस, है ना? एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है, दैट इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसका भी एक कंक्लूजन दे देते हैं, राइट? क्या बोलते हो? सो जस्ट अ मिनट बच्चा। इसमें न्यू स्लाइड ऐड कर देते हैं। एंड बच्चा सी दिस इज द होल जिस्ट। आई एम प्रिटी श्योर अगर आप लोगों ने पहले ही चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, और यू आर डूइंग दिस रिवीजन, और नहीं भी पढ़ा है ना तो भी रिवीजन के लिए पढ़ रहे हो अगर इसको, तो यू वुड बी गेटिंग जिस्ट ऑफ ऑल द थिंग, राइट? और ऑब्वियसली नाउ जेनेटिक डिसऑर्डर हमने देखा, जीन्स में यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। नाउ वी वुड सी द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो बच्चा अभी तक हमने सारा जेनेटिक डिसऑर्डर देखा कि एक एक जीन में चेंज होने की वजह से। नाउ वी वुड बी सीइंग द होल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दो टाइप का होता है बच्चा, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब या तो कोई क्रोमोसोम गेन हो जाए या लॉस हो जाए, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, या तो गेन हो जाए या लॉस हो जाए, राइट? एंड ये होता है बच्चा एनाफेज के टाइम पर। एनाफेज में जब वो खुद को सेपरेट कर रहा होता है तो कभी कभी वो एक्स्ट्रा उसमें आ जाता है, सेपरेट नहीं हो पाता, और कभी कभी एक में ही एक्स्ट्रा चले जाते हैं तो दूसरे में कम हो जाते हैं, राइट? सो ये सारा का सारा जो है बच्चा किस टाइम पर होगा? ऑब्वियसली साइटो एनाफेज के टाइम पर सही से नहीं हो पाई, या फिर साइटोकाइनेसिस के टाइम पर ये सही से डिवाइड नहीं हो पाते, तब ये बेसिकली कंडीशन देखी जाती है। एंड पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी में तो पूरा होल सेट ही क्रोमोसोम का डबल हो गया। तो जैसे जाना चाहिए था 23 पर हो गए 46, जाना चाहिए था 46 हो गए 92, डबल ही हो गया पूरा सेट। सो ये क्यों होगा? जब साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, सेल साइटोप्लाज्म डिवीजन के बाद नहीं हो पाता, राइट? सो होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज इंक्रीज्ड, hence whole set of chromosome is increased, and ये क्यों होगा बच्चा? ड्यू टू फेलियर
ऑफ फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का फेलियर आफ्टर टीलोफेज, टीलोफेज हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस का हुआ ही नहीं डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन ही नहीं हुआ, राइट। तो नाउ वी वुड सी ऑल द कंडीशंस, राइट। सो लेट्स डिस्कस ऑल द कंडीशन ऑफ एन्यूप्लॉइडी, किस में गेन होगा, किस में लॉस होगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल इज डाउन सिंड्रोम। वी नो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा बच्चा, 21st क्रोमोसोम में यहाँ पर ट्राइजोमी, मतलब 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे कायदे से, क्रोमोसोम होने चाहिए थे कायदे से, बट कितने हो गए, 3 हो गए। सो दिस इज द ट्राइजोमी, गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। 21 क्रोमोसोम मीन्स एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पर आ जाती है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ट्राइजोमी, राइट। तो बच्चा ये डाउन सिंड्रोम इज द एग्जाम्पल ऑफ इट, राइट। तो डाउन सिंड्रोम वाला इंसान कैसा होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय डाउन इज द साइंटिस्ट नेम, राइट, इसलिए डाउन सिंड्रोम इसको बोलते हैं। लैंगडन डाउन था तो डाउन बाय डाउन, ऑब्वियसली एल डाउन, लैंगडन डाउन था ये 1886 में। इसमें क्या होता है, वो जिसको भी है ये बीमारी, इट वुड बी हैविंग शॉर्ट हाइट, छोटी हाइट होगी, छोटा सा चांद जैसा फेस होगा, स्मॉल राउंड हेड, मतलब ऐसे राउंड हेड होगा, जीभ हमेशा उसकी बाहर निकली रहेगी। नाउ यू कैन इमेजिन ना, हमेशा जीभ बाहर निकली हुई है, और हमेशा मुंह ना खुला ही रहेगा, पार्शली ओपन है, पार्शली ओपन माउथ, हमेशा मुंह खुला ही रहेगा पार्शली। हाथ काफी ब्रॉड ब्रॉड होंगे, पाम ब्रॉड होंगे, और मेंटली रिटार्डेड होगा, साइकोमोटर, राइट, मेंटली रिटार्डेड। सो बच्चा दिस इज द ट्राइजोमी। ऐसी एक बीमारी होती है, द अनदर डिजीज इज द एडवर्ड सिंड्रोम। इसे हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना कि एडवर्ड सिंड्रोम इज ऑल्सो ट्राइजोमी। कौन से नंबर क्रोमोसोम पर 3 आ गए, एक्स्ट्रा एक कॉपी आ गई, 18th क्रोमोसोम पर, राइट। तो 18th क्रोमोसोम पर एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, एंड दीज ऑल आर बेसिकली ऑटोसोमल, है ना, तो ये सारी ऑटोसोमल है। इवन सेम इज अ डिजीज पटाउ सिंड्रोम, जिसमें ट्राइजोमी देखी जाती है ना। तो पटाउ सिंड्रोम इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इट। तो पटाउ सिंड्रोम इज ऑल्सो एग्जाम्पल, जिसमें क्या होता है, 13th नंबर क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा कॉपी, तो 13 क्रोमोसोम पर एक्स्ट्रा कॉपी देखी जाती है। ये सारी ट्राइजोमी वाली कंडीशन है, ऑल ऑफ दीज आर ट्राइजोमी कंडीशन। ऑटोसोमल क्रोमोसोम में ये सारा चेंज हुआ है, राइट। तो बच्चा सी, ये सारी कंडीशन हमने देख ली है अब, राइट। एंड यस, अभी तक हमने ऑटोसोमल का देखा है। नाउ ऑब्वियसली वी आर हैविंग दिस सेक्स लिंक्ड ऑल्सो, सो जस्ट वेट अ मिनट एंड बस हम अब इसको क्लियर कर लेंगे। एंड बच्चा देखो, आई हैव गिवन यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में, आई हैव गिवन यू होल जस्ट, एंड यू वुड श्योरली लाइक इट, राइट। सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड दो स्टूडेंट्स हु एक्चुअली नीड इट, राइट। तो उनके साथ आपने शेयर करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। सो यस, यहाँ पर अभी तक हमने ये सारा देखा, एंड देयर इज ऑल्सो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल चेंजेस भी होते हैं, लाइक क्लिनफिल्टर, राइट। सो यहाँ पर है बच्चा क्लिनफिल्टर, क्लिनफिल्टर। सो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या है, ऑब्वियसली देयर इज द ट्राइजोमी ऑल्सो, राइट। तो ट्राइजोमी में क्या होता है, XXY, कायदे से 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, 47 हो गए क्योंकि एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पर अगर ये मेल में होती है, ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, उसमें फीमेल वाले कैरेक्टर आ गए। फेमिनिन कैरेक्टर गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया मीन्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन केस ऑफ मेल, और ऐसा मेल नॉन फर्टाइल है, स्टीराइल है, राइट। तो ये भी कंडीशन किस में बचा, ऑब्वियसली ट्राइजोमी में है। ट्राइजोमी किसकी, ऑब्वियसली सेक्स क्रोमोसोम की, ट्राइजोमी इन केस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, राइट। एंड देयर इज ऑल्सो टर्नर सिंड्रोम, ये सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है ये भी, है ना। तो सेक्स लिंक्ड में एक हो गया यहाँ पर ट्राइजोमी, और एक होता है मोनोसोमी। मोनोसोमी मतलब क्या होता है कि ऑब्वियसली यहाँ पर 2 होने चाहिए थे कायदे से क्रोमोसोम, वो एक उसमें से गायब हो गया, तो अब सिंगल ही बचा। 46 होने चाहिए थे, 45 रहे।
यहाँ पर होता क्या है, लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। क्रोमोसोम में फीमेल के केस में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, बट इन टर्नर सिंड्रोम 1 एक्स गायब, मोनोसोमी हो गई है ना। तो फीमेल के केस में गायब, तो दिस कंडीशन इज द मोनोसोमी। अब ऐसी फीमेल कैसे होगी बच्चा मोनोसोमी वाली कंडीशन में? तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये फीमेल होगी स्टीराइल, मतलब नॉन फर्टाइल। ओवरी बनेगी लेकिन बहुत ही ना के बराबर, रूडिमेंट्री मीन्स लेस डेवलप्ड। इसमें होगा लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर भी सही से नहीं बनेंगे, राइट। सो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, एंड दैट्स ऑल। सो यहाँ पर जो है क्लिनफिल्टर को सुपर मेल भी बोला जाता है, राइट। सुपर मेल इज द सुपर मेल होता है एक्स वाई वाई वाला सुपर मेल कंडीशन होता है। तो कभी कभी ये ट्राइजोमी में ये कंडीशन देखी जाती है जब मेल में एक्स्ट्रा आ जाए। सुपर मेल ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खूंखार लोग होते हैं, राइट। उनमें कुछ ज़्यादा ही टेस्टोस्टेरॉन, ज़्यादा ही खट्टे खट्टे एकदम विलन लाइक होते हैं, वो उनका वो लुक ही विलन लाइक होता है। और एक होती है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल मतलब उसके अंदर ट्रिपल एक्स आ जाएंगे, है ना। तो मतलब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम आ गए। तो 22 पेयर्स तो होंगे वो ऑटोजोमल, सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। सुपर फीमेल में 22 पेयर्स ऑटोजोमल तो होंगे लेकिन एक्स एक्स्ट्रा आ गया। सिंपल, chapter completed. That's all, the huge summary of the whole chapter. Thanks a lot, bacha, and I'm pretty sure that all of you must be liking it. Write down in the comment box if you want me to do any topics in detail. And this was the summary complete for your last time revision. All the best for your exam, and bacha, please don't forget to like the video, share it with your friends, subscribe the channel, ask them to subscribe it so that you would be able to see all the videos that I'm uploading. Bye bye, have a great day, enjoy your day, right?